So they are. See, today we are going to start a new chapter. That is chapter 4, ethics and acceptance. Fine. So uh, gradually we'll see audit is a procedure and step by step you have to learn all the procedures. Fine. So as on we move to the subsequent chapters, a bridge will be made in your mind, and that is very important that a complete bridge will be created. So that complete procedure that should be understood, and you have to give your 100% if you want to that complete the bridge in your mind. है ना, वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी मेरे साथ साथ। तो मैं एक बार क्योंकि एक चैप्टर पढ़ा सकता हूँ, 2 बार पढ़ा सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। तो एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बार आप पढ़ोगे, एक बार रिवीजन हो जाएगा, एक बार उसके बाद अगर आप पढ़ लोगे तो वंस यू हैव गॉन थ्रू चैप्टर 4 to 5 times, आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट to create understanding. And the second, that is very important thing, that you have to practice the questions as many as possible. I hope you have also got the practice book. You have the practice book or not with this module? Other than this module, have you got the practice manual from the institute? Yes or no? Yes, sir. Yeah, you have Here and Simran. No, sir. I don't have it. You don't have it, Simran? You have it or not? Yes, sir. You have it. So here, kindly communicate with your coordinator. I hope Ekta ma'am is your coordinator. So if in case you can directly communicate with her, ma'am मेरे नहीं है वो मेरे को आप provide कीजिए. And like ACCA, it is a very the organization itself is a very helpful organization to their students. See, there is a very vast difference between the Indian education system and a UK education system. So they don't want their students to get failed. They want the students to get pass. उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि हम बच्चे पढ़ाई करें और जो है वो हम इस बात बेसिस के ऊपर रिजल्ट निकालें कि भाई डिमांड कितनी है, वो ऐसा कुछ नहीं है। They want if you have the potential, तो वो चाहेंगे कि आप पास हो और आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए, है ना। एंड फॉर ओनली दिस पर्पस आप अगर एसीसी का पोर्टल उसको अभी आपका मुझे नहीं पता आप लोगों ने एसीसी पोर्टल को कितना एक्सप्लोर किया है। सो वेन एवर यू विल गॉट योर login IDs for your ACCA portal, go and explore that portal. You will find lots of mock tests, practice tests for your exams. So when you perform this exams, mock test and practice test, you will get the idea of how the actual exams will going to be happen, है ना। तो वो आपको करना है वहां जाकर के, ठीक है भाई। वो आप ask for the login IDs from I hope Shubh and Simran you have got the login IDs on Yes, sir. here, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। तो वो एक्सप्लोर करना चालू किया नहीं है आप लोगों ने अभी तक? Yes, sir. उसको एक्सप्लोर कीजिए, उसमें यू विल फाइंड the different study material. Actually, ACCA by themselves they have provided a lots of study material for the students, है ना। वो आपको मिलेगा वहां पे, वो जाइए उनको एक्सेस कीजिए, पढ़िए उस पे, ठीक है। क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो एग्जाम आपका बनाएंगे वो लोग उन्हीं चीजों को यूज करते हुए, रिसोर्सेज को यूज करते हुए बनाएंगे, तो वो चीज आपको ऐसा ही। चलिए, let's now focus on our today's lecture, that is ethics and acceptance. And for this we have to first understand the term ethics. See, for the professionals, now it is a very important that you learn the meaning of ethics. We
as a professional do have different responsibilities towards our clients, our the other professional also, है ना, जो अब ACCA के दूसरे मेंबर्स हैं उनके टूवर्ड्स भी आपके लिए आपके पास अलग ड्यूटीज हैं, एंड टूवर्ड्स योर क्लाइंट जो है वो वेरी major responsibilities towards them, है ना. You have to differentiate yourself from the common persons. वो अलग हो सकते हैं, how they are not bound to follow the ethics, but you are bound to follow the ethics when you are performing your duties. See, there is a difference between an employee and a professional. You understand the difference between the employee and the professionals? Yes or no? Yes. Yes, sir. The employees are not bound by the ethics. Okay? They are bound by the rules and regulations their employer made for them. We are bound, we are not only bound by the rules and regulations, we are also bound by the ethics. And it should reflect in our day-to-day working. So now the unless and until we don't learn the proper ethics, whatever ethics has been developed for us, unless we don't learn them, we are not able to show them in our work. And it is very important that we learn those ethics. है ना, आपके काम में वो चीज दिखनी चाहिए, है ना. नहीं दिखेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, है ना. कॉमन मैन माइट नॉट बी not follow the ethics into their day-to-day life and their working, but as a professional we have a very greater responsibility, and if we don't follow the ethics, a action may be taken against us. See, a action may be serious that you have to be you will be removed from your membership list of ACCA. The action may become so much serious if you don't follow the professional ethics in your work. है ना, इतना इतना सीरियस है. अगर आप एथिक्स नहीं मानते हो तो, है ना, वो करना पड़ेगा आपको, आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है एथिक्स के बारे में. तो now the very at the very starting of the chapter we have to understand what is ethics. Ethics is nothing. Ethics is a manner, it is a professional manner how you behave and be seen to be behave, है ना. तो आप सोसाइटी में समाज में निकलते हो, आप सोसाइटी आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं रखती है कि आप कैसे बिहेव करेंगे, ठीक है. And these expectations comes from the practices of the society, है ना. सोसाइटी से मेरा मतलब है एज अ लार्ज, मैं कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा, किसी का. एज अ सोसाइटी आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमन पार्लेंस ऑफ पीपल, है ना. अब आप अगर आप से फॉर एग्जांपल इफ आई एम लिविंग इन दिल्ली, आई एम लिविंग इन बॉम्बे, I'm living in some metro city, there will be different expectations from the society from you. And if I'm living in a tier 2 or tier 3 cities, if I'm living in Jodhpur or some other town from Kota or any other town from UP or Bihar, so there the expectations of the people will be very different from you. होगा नहीं होगा, ये फर्क आएगा, है ना. Yes. Yes, sir. ठीक है. Now the ethics are different from the law. Ethics are not law. There is a basic difference between the ethics and law. You know, law is something which is written by the state. I am referring to the government here, you know. So state, it is referred it is written code by the state, it is approved by the parliament, and then it's come in our society, and it is when you don't follow the law you are liable to be penalized, है ना. कानून नहीं मांगेंगे तो उसकी उसकी पेनल्टी हमको देनी पड़ेगी. आप सड़क पे अगर गाड़ी चला रहे हो, हेलमेट नहीं लगा रहे हो, तो माइट बी पॉसिबल कि आपको पुलिस वाले पकड़ ले और आपको फाइन करे, आपको पेनल्टी करे, है ना, भरनी पड़ेगी वो. यस और नो. हाँ यार. Yes, sir. Yes. However, ethics are quite different from those laws. Ethics are not those strict laws. They are the expectations from you. When I talk about the professional ethics, they are the expectations of the professional body. आपकी professional body क्या है? ACC आपकी professional body है? Yes or no? है ना? Yes, sir.
So it is expectation of that professional body, because when you are working for some organization in capacity of a ACCA, you are not only representing yourself, you are representing your whole body of professional accountants. And this is very serious that you behave in a certain way, because if your practice is unethical, then it is not only that you are bringing disreputation to yourself, you are bringing a disreputation to your whole body. So it becomes very serious. So now your works, just give me a minute now, एक second. Sorry for the interruption in between. So now it becomes very important for us, while we are working, we are not only representing ourselves, we are representing our professional body, and lots of people are trusting on us. Now, as an auditor, if I say there is a very important position of yours in this economic scenario, in the economic world, है ना, कोई विश्वास कैसे करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? पूरा शेयर मार्केट चल रहा है, सब चीजें हो रही हैं, लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ट्रस्ट करके कोई डिसीजन देते हैं, कोई बैंक लोन देता है तब उसी के बेसिस पे देता है, कोई इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसी के बेसिस पे देता है, सरकार को टैक्स लेना है उसी के बेसिस पे लेना है, ठीक है? सब किसके ऊपर ट्रस्ट करके ये सब चीजें कर रही हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ट्रस्ट करके, एंड यू आर एज अ ऑडिटर, यू आर इन दैट कैपेसिटी, यू आर authorizing those financial statement, you're giving your opinion कि हाँ भाई ये सही है, ठीक है? So see yourself in a position that you are very important to this economy, and if you are practicing in an unethical way, the trust of whole economy will be loose, and once this trust will be loose, the whole economy will fall down. सोचो कि अगर शेयर मार्केट में लोग बार पैसा इन्वेस्ट करना बंद कर दें तो क्या होगा? समझ में आ रही है आपको ये बात, हाँ या ना? Yes, sir. है ना, समझ रहे हो सिमरन मेरी बात को? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव वेरी heavy responsibilities on your shoulder, not only to work but to work in an ethical manner, to behave in an ethical manner. Understood? आगे पढ़े इस चीज को, yes or no? Yes. Whatever I've discussed in these are we read this also, you will find my whatever I've taught you, you will find the context in this book. So see what they have written in here. Professional accountants have a responsibility to act in public interest. The purpose of insurance engagement is to increase the confidence of the intended user. Therefore, the user need to trust the professional who is providing the assurance. In order to be trusted, the assurance providers need to be independent of their client. Now, what do you mean by independence? It can be defined as having freedom from situations and relationships where objectivity would be perceived to be impaired by a reasonable and informed third party. See, now they have discussed the concept of independence. Now, if you want to be trusted, you need to be independent from your client. What do you mean by independent? See, there are certain relationships which can be clearly seen from the eyes, and one can perceive that you are not an independent person, but there are certain situations which cannot be seen from the eyes. अब आपका दोस्त है, लोगों को नहीं पता आपका दोस्त है, और आप उसके बिजनेस की फर्म का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट कर रहे हो, यू आर बाय माइंड यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, हाउएवर यू आर लुकिंग इंडिपेंडेंट, दिख तो रहे हो पर हो तो नहीं ना, यस और नो, आया ना? Yes, sir. हो तो नहीं, दिख तो रहे हो कि इंडिपेंडेंट हो। अगर आप जब बोलोगे कि मैं इसको नहीं जानता, हो सकता है वो मेरा फ्रेंड रहा हो, ये बात किसी को नहीं पता। जब मैंने उसकी बुक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया तो मैं पार्शियल था, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ, ही इज माय फ्रेंड, वन ऑफ माय गुड फ्रेंड, एंड आई डोंट वांट हिम टू face certain legal scenarios, and the actual financial position will come in before the world. So मैं नहीं चाहता ऐसा हो. So what I will do, I'm partial, I'm biased for him. I'm not looking partial and biased. So independence का जो कंसेप्ट है वो ये नहीं कह रहा है कि भाई आप दिख रहे हो ऐसे रिलेशनशिप में मत रहो। वो ये कह रहा है कि आप अगर नहीं भी दिख रहे हो ना, तो आपके माइंड से इंडिपेंडेंट हो चाहिए।
ठीक है, आप उस हर सिचुएशन, आप उस हर सर्कमस्टांसेस से इंडिपेंडेंट होने चाहिए जहां पे आपको ऐसा लगता है कि मेरी वर्किंग इम्पेयर होगी, मैं कोई दबाव महसूस करूंगा, कोई फोर्स होगा, कोई यहाँ पे मेरे को पार्शल होना पड़ जाए, मैं बाइस्ड हो जाऊं, तो ऐसी सभी सिचुएशन से आपको उसको दूर रखना पड़ेगा अपने क्लाइंट को। ठीक है, इस तरह का कोई रिलेशनशिप आपका एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। रिलेशनशिप मतलब अभी भी मैं क्लियर कह रहा हूँ, इट डज नॉट मीन द रिलेशनशिप जिनको लोग देख सकते हैं, वो सभी तरीके के रिलेशनशिप जो दिख नहीं रहे हैं वह एग्जिस्ट करते हैं, है ना। आया समझ में? यस और नो? ये now they have other than in this definition they have used this word reasonable and informed third party. इसका कोई बहुत ऐसा डीप मीनिंग नहीं है रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी का मतलब, बस इतना सा है कि कोई भी व्यक्ति, जो कि कोई भी पर्सन, इफ ही सीइंग दैट यू टू आर फ्रेंड्स, तो उसको डाउट होगा, होगा ही सही ना, कि हाँ भाई आप एक दूसरे के लिए इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अगर कोई आम आदमी ये चीज समझ सकता है, तो वो उसी समझ के लेवल पे जाकर के एज अ प्रोफेशनल मेरे को देखना है कि भी क्या मुझे एज अ ऑडिटर यहाँ पे काम करना नहीं चाहिए। आप उसको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे या कोई प्रोफेशनल देख करके समझिए और फिर ये बताए कि यार ये किस तरीके का रिलेशनशिप है। कोई आम आदमी अगर देख के, जिसको देख के लग रहा है ना कि यार यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे ये ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है, बस उसी लेवल की समझ आपको चाहिए। आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? yes sir. ठीक है, दैट्स व्हाई रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड पर्सन का मतलब अकाउंटेंट नहीं है, इट इज अ कॉमन मैन। उस आम कॉमन मैन के पास इतनी नॉलेज है कि वो देख करके समझ जाएगा, है ना। लोगों को समझ में आता है ना। आप ये सोचते हो कि देश में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, पॉलिटिशियंस पैसा खाते नहीं खाते, सब चीजें हो रही है, उनको वो चीज समझ में आता है, वो लोग बेवकूफ नहीं है, चाहे भले वो अपनी आंखें कितनी बंद कर ले, उनको समझ में आता है। यस और नो? हाँ ना, yes sir. आता है। बस उतना ही है, उतनी अंडरस्टैंडिंग का कोई पर्सन के हिसाब से आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, बट has enough relevant knowledge and experience to understand and evaluate the appropriateness of the accounting conclusion in an impartial manner. Now first in this chapter we'll see how these codes come, how these ethics comes into this existence, है ना, who created these ethics, है ना, who are publishing these ethics, who are creating this ethics, ये हमको समझना है। Now there are two different kinds of ethics we have to follow. One is IESBA code of ethics, and the second one is the ACCA code of ethics. See, IESBA, it is an international organization working under IFAC. You all know about the IFAC. We have already discussed about this in the chapter second. What is IFAC? It's the International Federation of Accountants. पता है इफेक्ट के बारे में? यस और नो? चैप्टर सेकंड में हमने इफेक्ट के बारे में पढ़ा, नहीं Yes पता? भूल गए? भूल गए या याद है? yes sir. International Federation of Accountants. इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, तो इट इज अ ग्लोबल बॉडी एंड generally the standards which you are studying for accounting and as well as auditing, these standards are mostly published by the IFAC. It has its own mechanism to research and then to draft and then to publish these standards. तो उनका एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, उनकी अपनी एक बॉडी है, आईएएसबी आईफेक के अंडर है, वो ये कोड ऑफ एथिक्स बनाती है। और आईएएसबी के अलावा एसीसीए जो आपकी बॉडी है, वो अपने कोड ऑफ एथिक्स बनाती है। नाउ क्या इन दो कोड ऑफ एथिक्स के बीच में कोई सिमिलरिटी? यस इट इज ऑफ कोर्स। सी, एसीसीए और ऐसी जो बॉडीज होती हैं अकाउंटिंग की, ये आईएएसबी को फॉलो करती हैं, क्योंकि वो तो बहुत रिसर्च करके ये सब चीजें बना रहे हैं। तो आईएएसबी ने बना दिया पूरा ना, ये जो कोड ऑफ एथिक्स है एसीसीए ने जो बनाया, इवन इंडिया में भी जो आईसीए ने अपने मेंबर्स के लिए बनाया, जनरली और भी दूसरी जो भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स की बॉडीज हैं, उन्होंने भी अपने मेंबर्स के लिए जो कोड ऑफ एथिक्स बनाए। दीज कोड ऑफ एथिक्स आर basically adopted from the code of ethics developed by the IASB, and then certain changes have been made, they are modified as per the requirement, as per the local requirement। हर कंट्री का अपना अपना है ना, तो थोड़ा बहुत उसमें उन्होंने मॉडिफिकेशन किया हुआ है, तो they are more or like same, but some modification has been made as per the need of the national regulation। क्लियर है? समझ में आई बात यहाँ पे? यस और नो? Yes sir. ठीक है, बट
इसमें आपको जो चीज मिलेगी वो चीज मिलेगी, यू विल फाइंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, थ्रेट्स टू द इंडिपेंडेंस एंड व्हाट सेफगार्ड्स यू हैव टू अप्लाई, ठीक है ना। एक एक करके इन चीजों को समझते हैं, एक सेकेंड ना। Sorry for the interruption in between. These are the fundamental principles, threats, and safeguards. Now, this chapter is very important. Kindly understand. You will find around 12 to 15 marks or more than 15 marks question only from this chapter in your final paper. Okay, so you have to thoroughly go through this chapter and understand each and every key principle, threat, and safeguard. है ना, वो एक एक बहुत फंडामेंटली आपको समझना पड़ेगा, है ना। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। IFAC through ISB, I already told you that IFAC is the body, ISB is the sub body, has issued a code of ethics, as has the ACC. The ACC code is covered in this chapter. Although both of these codes have the same roots and are to all intents and purpose identical. आगे बात समझ में, यही बात बोली इन्होंने भी, सर ने जो बात बोली कि यहाँ पे दोनों एक ही हैं, थोड़ा बहुत चेंज आपने अपने हिसाब से किया हुआ है ना भाई, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Both follow a conceptual framework which identify fundamental principles, potential threat to compliance, and possible safeguards which can be implemented to eliminate the threat. तो सी अंडरस्टैंड ट्राई टू कि क्या होगा कि आपको इंडिपेंडेंट रहना है, दिखना नहीं है, रहना है। दिखना भी है और रहना भी है, दोनों चीजें। दिखना तो है ही सही, ऐसा नहीं कि दिख रहे हैं लेकिन है नहीं, दिखना भी है रहना भी है। बाय माइंड बाय सोल यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। नाउ certain times, certain situation arises, certain circumstances comes which is basically a threat to your independent, which may become, अब आपके पास दो रास्ते रहते हैं, या तो उस काम को आप छोड़ दें, नहीं करें, और यू कैन पुट सम सेफगार्ड टू प्रिवेंट योर इंडिपेंडेंस। कुछ भी ऐसा हुआ जिसको आपको देख के लग रहा है ना कि यार इससे मेरी इंडिपेंडेंस चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो आपको उस जगह पे वो सेफगार्ड अप्लाई करना चाहिए ताकि आपकी इंडिपेंडेंस बनी रहे। आप दिखे भी इंडिपेंडेंट, आप रहे भी इंडिपेंडेंट, वो रहे, उसके लिए हम लोग सेफगार्ड अप्लाई करते हैं। हर चीज के लिए काम नहीं छोड़ा जाता, हर चीज के लिए क्लाइंट नहीं छोड़ा जाता। सी द प्रोफेशनल्स आर वेरी स्मार्ट। उन्हें पहले ऐसा लगा कि यार इंडिपेंडेंट रहना है, उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने सिचुएशंस बताई कि भाई ये सिचुएशंस अगर होगी तो इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी। फिर उनको लगा कि इससे तुम्हारा काम चल जाएगा, है ना भाई, हाँ या ना। फिर हम काम क्या करेंगे, किसका काम करेंगे हम लोग, यस और नो, ऐसे ही होगा। पैसे कैसे कमाएंगे? सो द प्रोफेशनल्स आर वेरी स्मार्ट, तो दे हैव क्रिएटेड अ वे आउट ऑफ इट। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, विल पुट सम सेफगार्ड। अब हमारा काम भी नहीं जाएगा, हम इंडिपेंडेंट भी रहेंगे। तो उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा अल्टीमेटली, ठीक है, कि कोई बात नहीं हम इंडिपेंडेंट नहीं है, बट हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम दिखें भी इंडिपेंडेंट और हम रहे भी इंडिपेंडेंट, पर हम काम करेंगे, ठीक है, पैसा नहीं जाना चाहिए। सो प्रोफेशनल्स आर स्मार्ट, यस और नो? हाँ ना? Yes. यस। बात समझ में आ रही है? शुभन सिमरन को डाउट हो तो मेरे को बताना प्लीज। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े? Yes, sir. So, Yes. ethical guidance can take a principle based approach और a rule based approach। अब देखो आपकी ethical guidance दोनों तरह की हो सकती है, principle based, rule based। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो जनरली principle based approach है। अगर ethical guidance rule based होती है और principle based होती है तो उसमें क्या फर्क होता है, ठीक है। दो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रिंसिपल बेस्ड है, पर इन्होंने डिफरेंस समझाया है। देखो प्रिंसिपल बेस्ड जो होती है उसमें आपको रिक्वायर कंप्लायंस विद द स्पिरिट ऑफ गाइडेंस। तो आप उनकी को जो कंप्लायंस करते हो, उनकी जो पालना करते हो, वो गाइडेंस के साथ करते हो, उसमें आपको गाइडेंस की जरूरत होती है। उन्होंने एक प्रिंसिपल दे दिया कि भाई ये चीज ऐसे है, जैसे आपने प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, से फॉर एग्जांपल कोई दे सकता है मुझे एग्जांपल कि सर ये प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, ठीक है, लेकिन इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने में हमको गाइडेंस की जरूरत होती है। अभी आप लोग, मैं 11th से पहले बात नहीं करता बच्चों से, क्यों नहीं करता, क्योंकि उस टाइम पे आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं। नाउ
commerce, when you enter the world of commerce, your A, B, C and D, it starts from the class 11. So from class 7 have you ever gone through certain principles कि यहाँ से ये principle है, लेकिन अब इसको apply कैसे करना है we don't know, we need certain guidance कि अच्छा इसको apply कैसे करेंगे, ये बताओ, पढ़ा है कोई principle आप लोगों ने यहाँ पे? जल्दी दिमाग लगाओ फटाफट, यहाँ से ये प्रिंसिपल पढ़ा था, समझ में भी आया, लेकिन अभी हमको नहीं पता कि उसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, बताओ। Yes sir, IS1 states that हम लोग को current and non-current liabilities और current और non-current assets differently बताने चाहिए financial statements में. So this is only the principle. See, ये प्रिंसिपल्स, हाँ ये प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग, आपको प्रिंसिपल्स मिलेंगे मैनेजमेंट की किताब में, जैसे उन्होंने दिया डिवीजन ऑफ वर्क, इट इट इज अ प्योर प्रिंसिपल। अब डिवीजन कैसे होगा काम को, ये सब आपके ऊपर छोड़ दिया, यू नीड द गाइडेंस कि सर डिवीजन करेंगे कैसे काम को, ये हमको नहीं है ना, इट इज अ प्योर प्रिंसिपल, है ना। तो दिक्कत आती है जब आप प्रिंसिपल सीखते हो ना, तो आपको गाइडेंस की जरूरत होती है कि उसको अप्लाई कैसे करना है, होती नहीं होती, वो डिफिकल्ट है थोड़ा सा। रूल्स के साथ ऑन दी अदर हैंड दे आर इजियर टू फॉलो बिकॉज वो क्लियरली डिफाइंड होते हैं, रूल इज अ रूल, है ना। अब आप रूल का कोई एग्जांपल सोचो कि सर ये रूल है, अब इसके लिए कोई गाइडेंस नहीं है, वो पढ़ लिया तो वो समझ में आ गया, जैसे क्रेडिट डेबिट का रूल हो गया, इट इज नॉट अ प्रिंसिपल, इट इज अ रूल कि ये अकाउंट क्रेडिट होगा और ये अकाउंट डेबिट होगा, ऐसा ही है, हाँ या ना, जैसे Yes Yes, sir. sir. उसके लिए Yes, sir. गाइडेंस की जो, इट इज अ रूल, वो एक बार समझ लिया वो एज इट इज अप्लाई। तो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच और रूल बेस्ड अप्रोच में एक बेसिक डिफरेंस जो आता है, प्रॉब्लम इज विद द प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, इट इज कि उसको उसको मानने के लिए, उसको कंप्लाई करने के लिए गाइडेंस चाहिए होती है, जबकि रूल बेस्ड अप्रोच जो होते हैं वो इजियर होते हैं, वो क्लियरली डिफाइंड होते हैं। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल जजमेंट्स अप्लाई करने पड़ेंगे अकाउंटेंट्स को, वहां इस तरह की जरूरत नहीं है, लेकिन रूल्स को आपको समय के साथ अपडेट करना पड़ता है, अपडेट टू इंश्योर गाइडेंस अप्लाइड इन न्यू सिचुएशंस, क्योंकि रूल स्पेसिफिक होते हैं। अब अगर कोई नई सिचुएशन आ गई, यू हैव टू फ्रेम न्यू रूल्स, है ना। प्रिंसिपल्स के साथ ऐसी जरूरत नहीं है, लाइक सी डिवीजन ऑफ वर्क इज अ प्रिंसिपल, वो तुम अगले 100 साल भी चल जाओ, 200 साल भी चल जाओ, 1000 साल भी चल जाओ, ये प्रिंसिपल काम आएगा, आएगा नहीं आएगा काम, डिवीजन ऑफ वर्क इज अ प्रिंसिपल, वो कभी भी काम आएगा, 1000 साल बाद भी काम आएगा, वो अपना काम करेगा प्रिंसिपल, वो आउटडेट आउटडेट नहीं होगा कभी, है ना। लेकिन जो if I made a rule for the purpose of division, वो आउटडेटेड हो सकता है कि काम को ये ऐसे नहीं बांटना चाहिए, समय के साथ अब चेंज करना पड़ेगा, अब काम को बांटने का तरीका हमको बदलना पड़ेगा, ये हो सकता है। तो रूल्स को आपको नई सिचुएशंस के हिसाब से चेंज करना पड़ता है, अप्रोच बदलने की जरूरत नहीं होती। आ गया समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes sir. ठीक है, सो दे आर फ्लेक्सिबल, दे कैन अप्लाई टू न्यू junior rapidly changing situations. Now may encourage accountant to interpret requirement narrowly and in order to get around the spirit of new requirements. Principle may be across applied across national boundaries with law. तो आप प्रिंसिपल बना दे, प्रिंसिपल हर जगह काम आते हैं, क्योंकि ये कानून नहीं है, ये सिर्फ प्रिंसिपल्स हैं, अक्रॉस बाउंड्रीज, ग्लोबल बना दिए, सब देशों में अपने आप लोग काम में ले लेंगे इनको, ठीक है। रूल के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है, रूल आपको स्पेसिफिक लेजिस्लेशन के थ्रू ही पास करना पड़ेगा, हमारी सरकार बनाएगी रूल तभी हम उसको मानेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल को हम फॉलो करें नहीं करें उसके कॉन्सिक्वेंस इनहेरेंट है। आप अगर काम का सिर्फ फॉर एग्जांपल ना, अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक डिवीजन ऑफ लेबर, अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करोगे, इसके नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आपका काम जो है वो टाइम से नहीं होगा, स्पेशलाइजेशन क्रिएट नहीं होगी, एक्सपर्टीज क्रिएट नहीं होगा, नहीं होगा, वो सजा नहीं है उसकी, वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है उस प्रिंसिपल को नहीं मानने। इफ लेकिन अगर कोई रूल होगा तो उसको नहीं मानने के कॉन्सिक्वेंस होने चाहिए, वो नेचुरल नहीं होंगे, वो मैनमेड ही होंगे, भी अगर आप नहीं मानोगे, सड़क पे अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे चालान बनेगा, ये रूल है ना, यस और नो। बट जरूरी थोड़ा ना सड़क पे हेलमेट नहीं लगाया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, शरीर फूट जाएगा, ये जरूरी थोड़ा ना चीज, हाँ है ना। Yes sir. Yes, sir. You can still incorporate specific rules for unethical situations likely to affect many firms, ठीक है, और प्रिंसिपल बनाने के बाद आप रूल्स बना सकते हैं। यहाँ पे हर एक चीज के लिए रूल नहीं बनाया जा सकता, हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं ऑलरेडी, लॉस, लेकिन फिर भी हम हर एक सिचुएशन के लिए तो लॉ नहीं बना सकते ना, बना सकते हो कि आप अपनी कंट्री में हर एक सिचुएशन के लिए लॉ,
कि रूल बना दे फॉर एवरी सिचुएशन, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। वहां आपको अल्टीमेटली यू हैव टू यूज दी प्रिंसिपल्स, कि भाई प्रिंसिपल क्या है वो देख लो। आया समझ में बेटा? क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Now this is Yes, sir. basically the difference between the principle based approach and रूल बेस्ड अप्रोच। अब ये इन्होंने सिर्फ समझा दिया है, ज्यादा रूल बेस्ड अप्रोच की तरफ उनको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल्स जो है वो यहाँ पे जो मतलब जो अभी हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली एथिक्स और प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच में। लेकिन लेकिन अंडरस्टैंड, even if these are based on principle based approach, these have to be followed by spirit, है ना? वो अगर नहीं करोगे तब disciplinary action can be taken against you, fine may be imposed, you will be suspended from your membership, or you have to be you have maybe your association will ask from you to withdraw your from the membership। ये सब चीजें हो सकती हैं। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? आगे Yes, sir. पढ़ें। Yes, sir. Now see, these are the fundamental principles. Now what are the fundamental principles of the audit? ठीक है, that you have to be professional, competent, and due care required to be shown. You have to at all time behave in a professional way. You have to maintain the integrity. You have to maintain the objectivity and the confidentiality। अब इन सब टर्म्स को इन लोगों ने एक एक करके डिस्कशन किया है। Now see, objectivity means what you see, you say, ठीक है? बट दिस इज ऑब्जेक्टिविटी, जो दिख रहा है वो बता दो, इट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिविटी, है ना? वंस यू enter your own perspective and then you write down the situation, it becomes subjective। ठीक है? अब मैंने देखा सामने एक्सीडेंट हुआ, मैंने किसी को बताया एक्सीडेंट हुआ है, एक कार आ रही थी, टकराया, आदमी मर गया, एक्सीडेंट हुआ है। ये जब मैं किसी को बता रहा हूं, इट इज एन ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, जो हुआ बता दो। नाउ एज अ ह्यूमन, बट मैं तो ऐसा बोलूंगा नहीं। बट क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि मैं एक इंसान हूं, मेरे अंदर एक वो है कुछ कि यार अपना खुद का थॉट इसमें घुसाओ साले में। तो मेरे को दिख रहा है एक्सीडेंट हुआ, मुझसे कोई पूछ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ हाँ यार वो तो आदमी गलत गाड़ी चला रहा था, उसको किसी की केयर नहीं थी, और वो जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ वो सड़क भी उसको पार करनी नहीं आती थी। और जब मैंने उसमें अपने दिमाग की चीजें घुसा दी ना, अपने थॉट घुसा दिए, इट बिकम सब्जेक्टिव। आया समझ में फर्क ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी के बीच में? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है? सो सब्जेक्ट सम व्हेनेवर यू पुट योर ओन थॉट्स इन इन सम सिचुएशन, और फिर आप अपने ओन, जब वो चीज आपके अब ओन थॉट से इन्फ्लुएंस हो चुकी है ना, इट बिकम सब्जेक्टिव। ठीक है? तो एज अ ऑडिटर यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पुट योर ओन थॉट्स in the financial statement, in the when you are framing the opinion on the financial statement, it should be objective statement that मैंने financial statement देखे, मुझे देखने के बाद इनको ऐसा नहीं लगा कि ये पूरे साल में किए गए बिजनेस का प्रेजेंटेशन सही तरीके से कर रहे हैं। ठीक है? दैट इज दैट इट शुड बी माई, अगर मेरे को लग रहा है कि नहीं किए गए, ये मेरा ओपिनियन, इतना ही करना है। तो आप ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आप बायस नहीं होने चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए, अड्डू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए जो आपके प्रोफेशनल बिजनेस जजमेंट को अफेक्ट करें। इट मींस ऑब्जेक्टिविटी। क्लियर है भाई? समझ में आया कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. your opinion should not be influenced by your personal judgments। प्रोफेशनल जजमेंट से हो सकता है, बायस नहीं होना है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज नहीं होना चाहिए। व्हाट इज अ प्रोफेशनल बिहेवियर? The professional behavior means that you comply with relevant laws and regulations and avoid any conduct that might discredit the profession। This, तो उसका मतलब क्या है कि जब आप अपना काम करें तो जो भी रिलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए, कंसीडर करते हुए अपना काम करें, उसको हम लोग प्रोफेशनल बिहेवियर कहते हैं। ठीक है? और ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे प्रोफेशनल को की डिसरेप्यूटेशन आए, डिसक्रेडिट आए, ऐसा कोई काम नहीं करना है। इट इज टर्म्ड एज प्रोफेशनल बिहेवियर। क्लियर है भाई? यहाँ पे समझ में आया सेकंड टर्म भी? Yes, sir. Yes. ठीक है?
उसके अलावा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, एंड इट इज अ वेरी फंडामेंटल प्रिंसिपल, you you don't have to accept the work for which you are not professionally qualified. When you don't have the relevant skills or knowledge, you are not supposed to accept the work. कोई भी काम करने से पहले आप ये देखें कि क्या आपके पास वो स्किल और नॉलेज है जो उस काम को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड है ना. Must attain and maintain professional knowledge skill at the level required to ensure that a client or employer receive competent, ताकि हम competent professional services दे सकें based on current development in practice, legislation, technique. सब चीजों को ध्यान रखें. ठीक है, तो प्रैक्टिस में भी समय समय पर चेंज आता है. दैट व्हाई दिस कॉल्ड एज प्रैक्टिस. आप प्रोफेशनल हो, आपके काम को प्रैक्टिस बोलते हैं. मैं लॉयर हूँ, मेरे काम को प्रैक्टिस बोलते हैं. आप यू विल बिकम ऑडिटर, आपके काम को प्रैक्टिस बोलेंगे. डॉक्टर्स के काम को प्रैक्टिस बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? उसका एक रीजन है. क्यों बोलते हैं भाई इसको, ये बताओ क्यों बोलते हैं हमें प्रोफेशनल? प्रैक्टिकली वर्क करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है. नहीं, वो सब चीजें तो ठीक है. इसको प्रैक्टिस इसलिए बोलते हैं कि द every day when you go to your work and you start doing your work, day by day you are getting better in your work. ठीक है, and you will learn new things. You will never going to stop learning. ठीक है, that is what the professional is different from the employment or business. वो सब चीजें आप एक बार सीख सकते हो, लेकिन प्रोफेशनल में रेगुलर डेवलपमेंट की जरूरत होती है. ठीक है, जैसे अब एज अ लॉयर नए कानून आते हैं, नए जजमेंट्स, कभी कोई कोर्ट नया जजमेंट दे देता है तो वो आपको पढ़ना पड़ता है. यू हैव टू लर्न दैट. ठीक है, सिमिलरली एज अ ऑडिटर यू हैव टू बी अपडेटेड इन द एरिया ऑफ योर प्रैक्टिस. तो वो टाइम टू टाइम आपको अपडेट करना पड़ेगा. ठीक है, इसलिए इसको प्रैक्टिस बोलते हैं. आया समझ में? आया ना? यस. इसलिए इसको प्रैक्टिस बोलते हैं. तो आपको अपना काम करने के लिए प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा. ठीक है, एंड दिस इज वेरी फंडामेंटल प्रिंसिपल. A professional accountant must diligently in accordance with the applicable technique and profession. And you have to act diligently and in accordance with applicable technical and professional standards. Integrity means honesty. Integrity का कोई ज्यादा खास मतलब नहीं. Integrity means honesty. Simple. You have to maintain the integrity means you have to maintain the honesty towards your work. क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे? Yes or no? Yes, sir. And the last fundamental principle is the confidentiality, and very important. Then, see, when you are working for one of your client, you will be in a position where you will get lots of confidential information from your client, and it is a duty, a very important duty to maintain the confidentiality information of your client. You cannot discuss that information with even with your family member. मन बहुत करता है इंसान का. ऐसे मेरे पास कोई क्लाइंट आया, उसका बेचारे का कोई दुख है, मेरे परिवार वाले पूछेंगे अरे क्या हो गया इसको, क्या प्रॉब्लम है. पर वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास किस कैपेसिटी में आई है? अगर मैं लॉयर नहीं होता तो क्या वो मुझे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करके बताते? सोचो. No, sir. नहीं बताते. ना दिस आई एम इन अ पोजिशन ऑफ अ प्रोफेशनल, and that information comes to me in that professional capacity. So now I have to maintain the confidence. मैं उनके बारे में नहीं बता, मैं परिवार वालों के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकता. आप ज्यादा कुछ ठीक है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा आप ये बता सकते हो आपका क्लाइंट कौन है, वो कॉन्फिडेंशियल नहीं है ना. मैं कर रहा हूँ किसी क्लाइंट के लिए काम, अब तुम रिलायंस के लिए काम कर रहे हो, ऑडिटर बन गए किसी दिन उसके, तो तुम बोलोगे सही कि हाँ भाई मेरे क्लाइंट है, ये तो जरूरी है, ये बताना तो है ना. लेकिन उस जो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, जो रिलायंस किसी और को नहीं बता सकता, वो आप भी किसी और को नहीं बता सकते. ठीक है, आया समझ में यहाँ पे? क्लियर है? यस और नो? यस. Sir. ठीक है, तो वो आप पर्सनल एडवांटेज के लिए नहीं ले सकते. ठीक है, नाउ दिस इज सम इलस्ट्रेशन. अ मेंबर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट बिकॉज दे साइंड द ऑडिटर रिपोर्ट विदाउट कंडक्टिंग एनी ऑडिट वर्क, कॉन्ट्रेरी टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी. ठीक है, आपने ऑनेस्टी नहीं दिखाई है अपने काम के अंदर. दिखाई क्या ऑनेस्टी यहाँ पे आपसे? अगर आप ऑनेस्टी दिखाते तो आप अपना काम पूरा करते,
और उसके बाद ही आप ओपिनियन देते, तभी देते ऑडिटर रिपोर्ट। यस सर। ठीक है, तो काम के साथ ऑनेस्ट रहें। ठीक है, a member was found guilty of misconduct because they failed to advise the client that an audit when an audit was required by law, contrary to the fundamental principle of law। आपको पता नहीं, आपका क्लाइंट है, उसने आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन बताई कि भाई क्या मेरे को ऑडिट कराने की जरूरत है, और आपके पास वो नॉलेज नहीं थी, तो या तो उसको मना कर देते कि भाई देख मेरे को नहीं पता, लेकिन आपने उसको गलत जो है वो कंसल्टेंसी दी। इट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर। Next, a member was found guilty of misconduct because they failed to reply to a correspondence sent by a third party and ACCA contrary to the professional behavior। ठीक है, क्योंकि किसी ने आपको कोई कॉरस्पॉन्डेंस भेजा, ठीक है, और बाय थर्ड पार्टी ने, ACCA ने भी भेजा थर्ड पार्टी, और आपने उसका रिप्लाई नहीं किया, दिस इज नॉट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का फॉलो करना पड़ेगा। इट इज अगेंस्ट द प्रोफेशनल बिहेवियर है। इसी से आपको कोई लेटर भेज रहा है, आप उसको जवाब नहीं दोगे, ये प्रोफेशनल बिहेवियर है? नो सर। नहीं है ना, इट इज नॉट प्रोफेशनल बिहेवियर। तो देखो, प्रोफेशनल बिहेवियर बहुत जरूरी है। जैसे हम एडवोकेट्स होते हैं ना, हमारे भी प्रोफेशनल बिहेवियर जरूरी होता है। सो चाहे मैं कोर्ट में कितना भी चिल्ला चिल्ला के लड़ लूंगा दूसरे से, लेकिन बाहर आने के बाद मैं उनसे लड़ाई थोड़ी ना करूंगा यार, क्योंकि वो कोई पर्सनल कैपेसिटी में तो मेरे से लड़ नहीं रहा है, वो अपने क्लाइंट के लिए आर्ग्यू कर रहा है, मैं अपने क्लाइंट के लिए आर्ग्यू कर रहा हूँ। बाहर हम लोगों का अलग तरह का रिलेशनशिप। ठीक है, तो प्रोफेशनल बिहेव आपको करना पड़ता है ना। A member was found guilty of misconduct because they lost possession of client's books and records to third party। ये हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का इन्फ्रिंजमेंट है ना। आपने क्लाइंट की बुक्स घुमा दी, ध्यान रखना पड़ेगा उसका, तो यस और नो। Yes, sir. ठीक है, a member was found guilty of misconduct because they carry out an audit of a company in which they own shares without implementing it। अब यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव रह के काम कर सकते हो, कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव रह के हम लोग काम यहाँ पे, जहां पे आप खुद शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं आपने। आप हमेशा वो चीज आपके पर्सनल थॉट से इन्फ्लुएंस होगी, आप बायस्ड होगे, है ना। ये हो, चलिए क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक, यस और नो? Yes, sir. यस सर। ठीक है, आई होप आज के लिए इतना सफिशिएंट है। कल इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं, कल फिर थ्रेड्स एंड सेफगार्ड्स पढ़ेंगे, है ना भाई। Yes, sir. सर सेक्शन सी से कौन कौन से चैप्टर्स से क्वेश्चन आते हैं? सेक्शन सेक्शन सी। किसी से भी आ सकते हैं, उससे क्या मतलब है, ये जनरली ऐसा नहीं है, किसी से भी आ सकता है क्वेश्चन तो भी। बट फर्स्ट जो सेक्शन ए है उसमें ऐसा है कि फर्स्ट टू फोर्थ में से ही आएंगे, लेकिन सेक्शन सी में किसी भी चैप्टर से आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। ओके ओके, सॉरी सर, लाइक जो मैंने पेपर निकाला था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, उसमें था कि तीन तीन टॉपिक से ही आते थे, इसलिए। नहीं, वो ऐसा जनरली देखो, मैं आपको 4-5 ऐसे चैप्टर बना दूंगा जिसमें से आपका 70 to 80% पेपर बनेगा, उसी में से बनेगा, है ना। बाकी सारे चैप्टर्स तो सपोर्टिव चैप्टर्स हैं। बाकी वो 3-4 चैप्टर ढंग से पढ़ लोगे, एक ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, एक इंटरनल कंट्रोल्स पढ़ना है, एक अपना टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पढ़ना है, उसके अलावा एक प्रोसीजर्स पे एक चैप्टर है, वो उनको पूरा पढ़ना है, और उसके अलावा एक हमारा लास्ट जो कि ओपिनियन वाला होगा, ऑडिट रिपोर्ट। तो ये 5 चैप्टर पढ़ लोगे ना 12 में से, तो 60-70% पेपर तुम तुम्हारा अटेम्प्ट कर पाओ अच्छे से। ठीक है भाई, यस सर, थैंक यू। चलिए कल इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं ना क्लास में। बाय, गुड नाइट। सर। हाँ शुभ, बोलो। सर कल की क्लास का टाइम क्या होगा? टाइम यार मैं मॉर्निंग ही तुम लोगों को बता पाऊंगा, क्योंकि तो 6:30 मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट कुछ अगर काम आ गया तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। हाँ वैसे मतलब 8 बजे से है ना तुम लोगों की क्लास, 8:15 से। तो 7 बजे भी रख सकते हैं कल क्लास। एक बार मैं कल देखता हूँ, अगर मैं तो मतलब कुछ और काम नहीं हुआ, कुछ मैनेज हो गया ऑफिस टाइमली, तो फिर 7 से रखेंगे। 7 to 8 पढ़ लेना, फिर 8:15 से तुम लोगों की वो क्लास हो जाएगी, ताकि लेट भी नहीं हो। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। चलिए बाय, गुड नाइट। Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।